थोड़ा सा रिवाइज करते हैं ये लेसन को थोड़ा सा, ठीक है। इस लेसन में हम लोग सेल साइकिल के बारे में सबसे पहला इंट्रोडक्शन जो था दैट वाज अबाउट सेल साइकिल. Cell cycle is the sequential events, or it is a sum of sequential events which happen in the life of a cell. That is called as cell cycle. Now, cell cycle consists of two phases. Which are these two phases? First is interphase, and the second phase is M phase. During the interphase, cell will prepare itself for the upcoming M phase. Right? Correct, है ना? Yes, ma'am. And during metaphase the proper cell division starts. Now interphase is divided again or subdivided again into three subphases: G1 phase, S phase and G2 phase. Now G1 phase में क्या होता है? All protein synthesis, right? Then duplication of certain organelles, ये सारी प्रोसेसेस होती है. S phase जो होता है उसमें क्या होगा? जो डीएनए होता है वो डुप्लीकेट होता है, एट द सेम टाइम हिस्टोन प्रोटीन्स भी तैयार होते हैं. जो लास्ट फेज होती है इंटरफेज की दैट इज G2 फेज. G2 फेज में प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड व्हिच आर नेसेसरी फॉर द सेल डिवीजन एंड द सेंट्रियोल्स आर duplicated. Duplication of centrioles happens in the last phase. ठीक है. Now this is all about interphase. After interphase, the cell will go into M phase. Now M means either mitosis or meiosis. This M phase is again divided into four, basically into two phases, that is karyokinesis and cytokinesis. Karyokinesis is the division of nucleus, and after that cytokinesis will follow it. Now this karyokinesis is divided into four subphases, that is prophase, metaphase, anaphase and telophase. And after the completion of telophase, cytokinesis is followed. ठीक है. इसके बाद हमने माइटोसिस की जो ये फेजेस है या कैरियोकाइनेसिस के जो फेजेस है माइटोसिस में जो होते हैं वो स्टडी करना शुरू किया था. उसमें हमने सबसे पहली और माइटोसिस की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं माइटोसिस में. Whatever genetic composition is that of the parent, it will be exactly copied by the daughter cells, right? So the daughter cells which are formed at the end of the mitosis, and at the end of the mitosis two daughter cells are formed from a single parent cell. Now these two daughter cells are exactly carbon copy or exactly genetically similar to the parent cells. ठीक है. इतना हमने कल देखा था, राइट? याद आ रहा है? Yes. नाउ माइटोसिस में जो सबसे पहली फेज होती है दैट इज प्रोफेज. प्रोफेज में कुछ बेसिक इवेंट्स होते हैं. कौन से होते हैं? सबसे पहला इवेंट जो होता है दैट इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल स्टार्ट डिसअपियरिंग, राइट? At the same time, nucleolus also starts disappearing. At the end of prophase, both these structures, that is the nuclear membrane and nucleolus, they will completely disappear. ठीक है. सेकेंड जो इवेंट होता है वो क्या होता है? जो क्रोमैटिन फाइबर होता है which is actually invisible under the electron microscope, it starts condensing. Condensation of chromatin fibers starts during the early prophase. ठीक है. Now because of condensation what will happen? Coiling of chromatin fibers start हो जाता है. इसके वजह से जो chromatin fibers है वो अभी हमको थिक दिखाई देने लगते हैं. They become thick and more conspicuous under the electron microscope. At the same time जो sister chromatids होते हैं they come together and they are attached to each other by the centromere, right? 1 minute.
तो हम क्या बोल रहे थे, प्रोफेज में सेकेंड इवेंट जो होता है वो हम देख रहे थे, उसमें सिस्टर क्रोमैटिड्स जो होते हैं वो क्लोज आते हैं एंड दीज आर अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ द सेंट्रोमियर. ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस वी कैन सी द क्रोमोसोम अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. समझ में आ रहा है, याद आ रहा है कल का थोड़ा थोड़ा? यस मैम. सो ये दो जो इवेंट्स होते हैं वो होता है, और थर्ड एक होता है जो सेंट्रियोल्स फॉर्म या डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल होता है एट द एंड ऑफ इंटरफेज. ये जो दो सेंट्रियोल्स होते हैं वो सेंट्रियोल्स दे स्टार्ट माइग्रेटिंग टूवर्ड्स द अपोजिट पोल. ठीक है, सो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट इवेंट्स विच हैपन इन प्रोफेज. उसके बाद जो होता है वो मेटाफेज स्टार्ट होता है. मेटाफेज में क्या होगा, जो भी क्रोमोसोम्स अभी तैयार हो चुके होते हैं, chromosomes they lie at the equatorial plane of the cell. Now equatorial plane हमको कैसे समझ में आएगा, यहाँ पर दोनों अपोजिट साइड्स में सेंट्रियोल्स होते हैं, राइट, जैसे अर्थ के पोल होते हैं दो, एंड सेंटर में इक्वेटर होता है. उसी तरीके से यहाँ पर जो इक्वेटोरियल प्लेन है, दिस इज कॉल्ड एज मेटाफेज प्लेन. सो द क्रोमोसोम्स विल अरेंज themselves in the metaphase plane. ठीक है, at the end of prophase these spindle fibers are formed. Now the spindle fibers will attach to the chromosomes. कहाँ पर अटैच होते हैं, at the site of centromere. ठीक है, so the spindle fibers will attach to the chromosomes at the site of their centromeres. ये respective pole में होगा, करेक्ट है. दिस इज ऑल हैपन्स इन मेटाफेज. समझ में आ रहा है, याद आ रहा है? मॅम हाँ बोलो. मॅम माझ्या इथं ना नेटचा जरा इश्यू झालाय, ते मला स्क्रीन पण दिसत नाही आणि मध्ये मध्ये टीप होत आहे. आता काय करणार आहेस मग तू, ह्याच्यावर युट्यूब वर बघशील नंतर हाँ. व्हिडिओ. रोहित मोबाईल स्विच ऑफ करके ऑन कर. दिस इज ऑल अबाउट मेटाफेज. मेटाफेज में मेन इवेंट्स क्या होते हैं, द क्रोमोसोम्स विल अरेंज देमसेल्व्स इन द मेटाफेज प्लेन. द स्पिंडल फाइबर्स which are formed from the respective centrioles, they will attach to the chromosomes at the site of centromere. At the same time जो सेंट्रोमियर होता है क्रोमोसोम का वो ब्रेक हो जाता है. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द मेटाफेज. एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं दे स्टार्ट, उनमें कॉन्स्ट्रिक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट पुल जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम इट विल ब्रेक, और द सिस्टर क्रोमैटिड्स जो होते हैं दे ब्रेक एट द साइट ऑफ द सेंट्रोमियर. नाउ अभी ये ब्रेक होने के बाद ऐसे दिखाई देना लगता है. समझ में आ रहा है? यस मैम. सो क्या होगा, सेंट्रोमियर पर जब ये ब्रेक होते हैं दे विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द रिस्पेक्टिव पोल. मतलब यहाँ का हाफ जो होगा वो इस पोल पर जाएगा, यहाँ का हाफ जो होगा वो इस पोल पर जाएगा. ठीक है, नाउ अभी ये जो क्रोमोसोम होता है ना, इसको हम बोलते हैं डॉटर क्रोमोसोम. पहले जब ये अटैच थे तब हम इसको सिस्टर क्रोमैटिड बोल रहे थे. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? फिर से एक बार तो ये करती हूँ. सी, हम क्रोमोसोम को इस तरीके से जनरली निकालते हैं, एक्स की तरफ दो आर्म्स होते हैं उसके, यानी दो क्रोमैटिड्स होते हैं, राइट. ये जो क्रोमैटिड्स होते हैं उसको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड, एंड यहाँ पर जो होता है वो होता है सेंट्रोमियर. ठीक है ना, समझ में आ रहा है हुसैन? नाउ अभी ये जब ब्रेक हो जाएगा तो क्या होगा, इस तरीके से दो क्रोमोसोम, एक सिंगल क्रोमोसोम के दो पार्ट्स बन जाते हैं इस तरीके से, जिसको अपना अपना खुद का सेंट्रोमियर होता है. देन दिस इज कॉल्ड एज डॉटर क्रोमोसोम. इसको हम अभी डॉटर क्रोमोसोम बोलेंगे. समझ में आ रहा है हुसैन? समझ में आ रहा है? यस मैम. यस मैम. ठीक है.
ये जो डॉटर क्रोमोसोम्स होते हैं, दे विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव पोल्स. Anaphase, the chromatids of each chromosome separate and form two chromosomes which are called as daughter chromosomes. So ये जो क्रोमोसोम ये सेपरेट हो जाएगा एंड एक एक आर्म जो होगा या एक क्रोमोसोम सेपरेट होके जो दो क्रोमोसोम्स बनेंगे, उस क्रोमोसोम को अभी हम डॉटर क्रोमोसोम बोलेंगे. The formed chromosomes are pulled away in the opposite direction by the spindle apparatus. ये जो स्पिंडल apparatus होता है या ये स्पिंडल फाइबर अगर बोलते तो भी चलेगा, ये स्पिंडल फाइबर जो होते हैं they will pull the daughter chromosomes towards the respective poles. जब ये पुल करेगा तो इस तरीके से शेप आता है या इस तरीके से शेप हो जाता है क्रोमोसोम का. इट अपीयर्स लाइक अ बंच ऑफ बनाना. आपको एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन आता है कि क्रोमोसोम्स इन विच फेज द क्रोमोसोम्स अपीयर टू बी लाइक अ बंच ऑफ बनाना, दैट इज द एनाफेज. ये उसका आंसर होता है. The chromosomes will pulled away appear like a bunch of banana during the midway of anaphase. तो anaphase में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो बंच ऑफ बनाना के जैसे दिखाई देते हैं. दिस इज द एमसीक्यू का क्वेश्चन होता है. ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम्स रीच एट द अपोजिट पोल. सो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपने अपने पोल पर आ जाते हैं. यहाँ पर जो है वो एनाफेज खत्म हो जाता है और दिस इज द एंड ऑफ एनाफेज. एनाफेज की इवेंट समझ में आ गए. नाउ जो लास्ट फेज है दैट इज टीलोफेज. अभी टीलोफेज में क्या हो चुका है, ऑलरेडी जो डॉटर क्रोमोसोम्स है वो अपने अपने पोल पर आ चुके हैं. राइट नाउ अभी क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स थे वो पहले कंडेंसेशन, प्रोफेज में कंडेंसेशन के बाद वो थिक हो चुके थे. नाउ टीलोफेज में प्रोफेज का एकदम अपोजिट इवेंट जो होता है ना वो टीलोफेज में होता है. तो ध्यान में रखने में इजी जाएगा. ये प्रोफेज में जो होता है उसके अपोजिट सब कुछ टीलोफेज में होता है. अभी टीलोफेज में क्या होगा, ये जो कंडेंसेशन हुआ था पहले वो अनकॉइल होने शुरू हो जाते हैं. तो डॉटर क्रोमोसोम जो होंगे या क्रोमोसोम जो होंगे वो अभी दे विल स्टार्ट अनकॉइलिंग. अनकॉइलिंग का मतलब फिर से वो थिन दिखने थिन दिखाई देंगे, फाइबर लाइक दिखाई देंगे, क्रोमैटिन फाइबर की तरीके से दिखाई देंगे, विच आर नॉट अगेन विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप. मतलब वो अपने पहले के फॉर्म में वापस आ जाते हैं. सो यहाँ पर अनकॉइलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स बिगिन हो जाता है और दे अनकॉइल. उसके बाद दूसरा जो होता है, जो प्रोफेज में जैसे ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाता है. लेकिन टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल रीअपियर. न्यूक्लियोलस जो होता है वो भी अगेन रीअपियर हो जाता है. समझ में आ रहा है. एंड हमको यहाँ पर दो डॉटर न्यूक्लियाई मिल जाते हैं. ठीक है. उसके बाद जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ये पूरे के पूरे डिसअपियर हो जाते हैं. दे डिसॉल्व इनसाइड द साइटोप्लाज्म. स्पिंडल फाइबर्स ब्रेक डाउन होते हैं साइटोप्लाज्म में, वो एब्सॉर्ब हो जाते हैं. सो these are the events which happen in the telophase. So telophase में क्या क्या हुआ है, basically chromosomes they start uncoiling. ठीक है. उनकी लेंथ जो है वो डाइजेस्ट लेना पड़ेगा. सो टीलोफेज में क्रोमोसोम्स अभी अनकॉइल हो जाएंगे, उनकी लेंथ बढ़ेगी. दे विल लूज देयर इंडिविजुअलिटी, यानी वो पूरा लाइक क्रोमैटिन फाइबर्स जैसे होते हैं ना उसी तरीके से दिखाई देने लगता है. न्यूक्लियोलस begins to reappear. Nuclear membrane begins to appear around the chromosomes. So nuclear membrane आएगा, nucleolus आएगा, spindle fibers they break down and get absorbed in the cytoplasm and हमको दो daughter nuclei मिल जाते हैं. ठीक है. This is the end of karyokinesis. यहाँ पर nuclear division खत्म हो चुका है and we get two daughter nuclei from the parent nucleus. जो parent cell का nucleus था उसके बाद हमको यहाँ पर दो daughter nuclei मिले हैं. ठीक है. So this is the end of karyokinesis. Now karyokinesis के बाद जो phase आता है वो होता है cytokinesis का. Now cytokinesis में क्या होगा, जो cytoplasm है सेल का वो डिवाइड हो जाएगा. ठीक है. So the division of cytoplasm into two daughter cells, it is called as cytokinesis. This division starts with the constriction. So division start कैसे होता है, ये जो सेल का सेल मेम्ब्रेन है
वहां पर कॉन्स्ट्रिक्शन शुरू हो जाता है. इट बिगिंस विद द कॉन्स्ट्रिक्शन, एंड ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन है ना, ये डीप डीप होता जाता है. यानी अभी यहाँ पर है तो बाद में ये थोड़ा सा और नीचे आएगा, इस तरीके से यहाँ से. सो ये ऐसे डीप डीप होने लगता है, एंड एट द एंड जो है हमको इस तरीके से दो सेल्स अलग अलग मिल जाती है विद देयर ओन साइटोप्लाज्म. ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ फिर साइटोकाइनेसिस. एट द सेम टाइम जो ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल में डिफरेंट डिफरेंट, वो ऑर्गेनेल्स भी इक्वली डिवाइड होती है, इक्वल डिवीजन होती है. यहाँ पर हर एक चीज की डिवीजन जो होती है वो इक्वल डिवीजन होती है. The division starts with the constriction. This constriction gradually deepens and ultimately joins at the center, dividing into two daughter cells. This process is division of cytoplasm. It is perpendicular to the spindle. अब ये हमेशा कैसी होती है, जहां पर सेंट्रियोल्स होते हैं ना, यानी जैसे हमने मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेन देखा था, उसी तरीके से इक्वेटोरियल प्लेन में ये कॉन्स्ट्रिक्शन होता है. मतलब यहाँ पर सेंट्रियोल है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही कॉन्स्ट्रिक्शन होगा. इस तरीके से यहाँ पर ऐसे कॉन्स्ट्रिक्शन कभी भी नहीं होगा. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? कॉन्स्ट्रिक्शन हमेशा सेंट्रियोल को परपेंडिकुलर Yes. होगा. ऐसे कभी नहीं होगा, इस तरीके से कभी नहीं होगा. ओनली दिस वे विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, ऐसे ही डिवीजन होगा हमेशा. ये हमेशा याद रखना है. इट इज दिस प्लेन इज, और द कॉन्स्ट्रिक्शन प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द सेंट्रियोल्स. और जहां से स्पिंडल फॉर्म होते हैं, ऑब्वियसली स्पिंडल तो सेंट्रियोल से ही फॉर्म होते हैं. दिस मैकेनिज्म ऑफ साइटोकाइनेसिस इज कैरेक्टराइज्ड, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल सेल. तो ये जो दिस इज मेनली, मतलब ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन है ना, ये कॉन्स्ट्रिक्शन ओनली एनिमल सेल्स में होता है, क्योंकि एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है. ठीक है ना, ओनली सेल मेम्ब्रेन होता है. सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हमने देखा है फ्लूइड मैकेनिज्म वाला. ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है एज कम्पेयर टू सेल वॉल. सेल वॉल प्लांट सेल में जो होती है वो फ्लेक्सिबल नहीं होती है, रिजिड होती है ज्यादा, राइट. तो प्लांट सेल में फिर क्या होगा, प्लांट सेल में सॉरी अगर एक मिनट. ये प्लांट सेल है अगर, ठीक है, तो यहाँ पर दो न्यूक्लियाई ऑलरेडी मिल चुके हैं यहाँ पर हमको, एंड अभी साइटोकाइनेसिस होना है. सेल वॉल जो होती है वो रिजिड होती है, तो क्या होता है, जो सेंटर होता है ना, वहां पर सेल प्लेट तैयार होना शुरू हो जाती है, एंड वो अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे ऐसे ग्रो करेगी, एंड इट विल गो अप टू द सेल वॉल. यानी वो सेंटर से शुरू होगी. जैसे मैम यानी ऊपर साइड जाएंगी या मतलब एकदम क्रॉस साइड? एक मिनट. हाँ, क्या बोला आपने? समझ में आ रहा है. सो एनिमल सेल में कॉन्स्ट्रिक्शन जो होता है वो पेरीफेरी से शुरू होता है, एंड वो इनर साइड में डीप होता जाता है. वेराज प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में जो सेल प्लेट है वो सेंटर में फॉर्म होती है, एंड वो पेरीफेरी में बढ़ती जाती है. दोनों अपोजिट प्रोसेसेस होते हैं. इन प्लांट सेल्स cells are covered by relatively non-flexible cell wall. Cell wall जो होती है वो rigid होती है. Due to this rigidity, furrow cannot be formed. So ये जो furrow है ना, constriction को ही furrow कहा जाता है. So constriction cell wall में नहीं होगा because cell wall is more rigid. Instead, cell wall partition starts to appear at the center of the cell. तो यहाँ पर partition आना पहले center में शुरू होता है, and this partition will grow towards the periphery. The formation of new wall begins within the formation of a simple precursor called as cell plate. तो ये जो partition होता है उसी को हम cell plate बोलते हैं. तो formation of cell plate starts at the center and it will go or it will grow towards the periphery. ठीक है, and in this way फिर हमको दो daughter cells यहाँ पर मिल जाएंगे, and cell division plant cell में complete हो जाएगी. ठीक है, so the cell plate that represents the middle lamella between the walls of two adjacent cells. तो ये जो cell plate होती है, ये cell plate represent करती है middle lamella. middle lamella हम जब organelles का lesson study कर रहे थे उसमें हमने देखा है कि कैसे होता है. so जो cell wall होती है, cell wall के 3 layers होते हैं, उसमें सबसे जो outermost layer होता है that is called as middle lamella. so this cell plate
जो है it will represent the middle lamella in the formation of cell wall. Clear है? Yes, ma'am. At the time of cytoplasmic division, organelles like mitochondria, plastids get distributed between the two daughter cells. So बाकी के जो different organelles होते हैं cell के वो भी equally divide हो जाते हैं, and in this way we get the two different cells from the single parent cell. अगर ये single parent cell है तो इसके बाद हमको at the end of mitosis दो daughter cells यहाँ पर मिल जाएंगे which are जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट सेल. अगर पेरेंट सेल 2n है तो ये दोनों भी 2n ही होती है, ये दोनों भी 2n होती है. ठीक है, इक्वल होता है, जेनेटिक कंपोजिशन सेम टू सेम होता है. दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ माइटोसिस कि जो जेनेटिक कंपोजिशन है वो मेंटेन किया जाता है पेरेंट सेल एंड डॉटर सेल्स में. ठीक है, अभी ये इक्वल कैसे हुआ वो समझ में आया ना आपको? Yes, ma'am. समझ में आया. Clear है. नाउ सिग्निफिकेंस, जब क्वेश्चंस आते हैं तो इसी तरीके से आते हैं. राइट डाउन द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस. माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन. इक्वेशनल डिवीजन, same number of chromosomes appear in the daughter cells also, that is why it is equational, equal रहता है. that is why हम माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं. the chromosome number is maintained constant. so chromosome number जो होता है पेरेंट्स एंड डॉटर सेल्स में वो कांस्टेंट होता है, सेम होता है. इट ensures equal distribution of nuclear and cytoplasmic content between the daughter cells both quantitatively and qualitatively. जैसे मैंने बोला कि जो कुछ मटेरियल सेल में होगा उसका पूरा इक्वल होगा, यानी जैसे तराजू होता है ना, पूरा का पूरा दोनों साइड में इक्वल होता है, सेम काइंड ऑफ. साइटोप्लाज्मिक जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी दोनों सेल्स में इक्वल होगा. एट द सेम टाइम जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो भी इक्वली डिवाइड होता है. सिमिलरली जो डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो भी दोनों सेल्स में इक्वली डिवाइड होते हैं. दैट इज मैम आवाज ब्रेक हो रहा है. अभी आ रहा है ठीक से? हेलो. आवाज आ रहा है अभी? हेलो. 1 मिनट. आ रहा है अभी? So everything is equally divided in the daughter cells. That is why it is equational division. Hereditary material, that is DNA, is also equally distributed. This will help in the growth and development of the organism. So because of ये जो equal division होता है उसके वजह से growth में and जो genetic composition है वो maintain करने में help होती है. So यहाँ पर diagram दिया है उन्होंने कि furrow formation animal cell में कैसे होता है, यहाँ से शुरू होगा. whereas cell plate जो होती है plant cell में center से शुरू होती है and periphery वो बढ़ती जाती है. हमको at the end दो cells different यहाँ पर मिलते हैं. अगेन जो माइटोसिस का सिग्निफिकेंस है उसी में यहाँ पर यानी एडवांटेज क्या क्या होता है. ओल्ड एंड वर्न आउट सेल्स आर रिप्लेस्ड थ्रू माइटोसिस. सो बॉडी में जो भी ओल्ड सेल्स होते हैं या डेड सेल्स होते हैं, दीज आर रिप्लेस्ड विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस. इट हेल्प्स इन असेक्सुअल, अभी ये हो गया एनिमल्स में. सिमिलरली जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनमें जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो माइटोसिस के हेल्प से होता है. एंड प्लांट्स में जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है वो भी इसी तरीके से होता है और माइटोसिस के हेल्प से ही होता है. इट हेल्प्स इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स and vegetative propagation in plants. The process of mitosis also maintains the nucleocytoplasmic ratio. यानी because of mitosis जो रेशो होता है साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस के अंदर का जो मटेरियल है यानी जेनेटिक मटेरियल उसका जो स्पेसिफिक रेशो होगा वो स्पेसिफिक रेशो मेंटेन होता है. क्यों होता है? बिकॉज दिस इज अ इक्वेशनल डिवीजन. हर एक चीज इक्वल डिवाइड होगी एंड बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक इट विल मेंटेन द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो. ठीक है. The mitosis is very reliable process for preserving the genetic makeup. अभी as it is equational division, as the genetic material is equally divided and it is मतलब जो parent cell होती है
सेम टू सेम उसी तरीके का जेनेटिक मटेरियल डॉटर सेल्स का होता है. बिकॉज ऑफ दिस व्हाट जो जेनेटिक मटेरियल है या जेनेटिक कंपोजिशन है, जेनेटिक पैटर्न है, वो प्रिजर्व होता है. इट कैन नॉट इंट्रोड्यूस वेरिएशन. अभी उसका एक ड्रॉबैक जो है माइटोसिस का, जो वेरिएशंस होते हैं वो वेरिएशंस माइटोसिस में नहीं आते. दिस इज द ओनली, इसको ड्रॉबैक भी बोल सकते हैं कभी कभी या फायदा भी है. मतलब सोमैटिक सेल्स जो होते हैं उनमें माइटोसिस होता है, तो उनमें तो हमको डीएनए मटेरियल जो भी होता है वो कार्बन कॉपी चाहिए होती है. सो इट इज हेल्पफुल देयर. बट जब हम इवोल्यूशन की बात करते हैं तो इवोल्यूशन में चेंजेस जरूरी होते हैं. बट बिकॉज ऑफ इक्वल डिवीजन यहाँ पर इवोल्यूशन नहीं हो पाता है, वेरिएशंस नहीं आते. इवोल्यूशन यानी क्या है कि वेरिएशंस आते हैं, कुछ चेंजेस आते हैं. बिकॉज ऑफ दिस चेंजेस कुछ तो अलग आता है, नया जनरेशन जो होता है उसमें. लेकिन माइटोसिस में ये सारे चांसेस नहीं होते क्योंकि इट इज ए इक्वेशनल डिवीजन. ठीक है. सो दीज आर ऑल द क्या बोल सकते हैं हम, एडवांटेजेस ऑफ माइटोसिस. ओनली वन डिसएडवांटेज, हम उसको डिसएडवांटेज कब बोलेंगे, व्हेन वी आर कंसिडरिंग द इवोल्यूशन, हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन. वेरिएशंस नहीं आते माइटोसिस. ठीक है. यहाँ तक क्लियर है. There are 4 types of spindle fibers. क्या मैकेनिज्म होती है. Pulling away of daughter chromosomes is achieved by elongation and shortening of 2 types of spindle fibers. The spindle fiber present between the centriole and the centromere. Between the centriole and the centromere. ऐसे जो फाइबर्स होते हैं इनको हम काइनेटोकोर्स बोलते हैं. ये जो ब्लू लाइन में दिखाई दे रहे हैं ना आपको यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ रहा है. ये जो इस तरीके के स्पिंडल फाइबर्स होते हैं. मैम हाँ बोलो. रिपीट करो ना एक बार. सी, ये जो स्पिंडल फाइबर्स है जो सेंट्रियोल से सेंट्रोमियर तक एक्सटेंड करते हैं, यानी ये वाला जो आपके बुक में ब्लू लाइन ब्लू कलर में दिखेगा, यहाँ से यहाँ जो अटैच होता है, दीज आर कॉल्ड एज काइनेटोकोर्स. समझ में आ गया. ओके मैम. हाँ. ये काइनेटोकोर्स जो होते हैं वो शॉर्ट होने लगते हैं. एंड दैट इज वाई यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स है या क्रोमोसोम है वो ब्रेक होके 2 डॉटर क्रोमोसोम्स में स्प्लिट हो जाता है. ठीक है. क्लियर है. यस मैम. The spindle fiber present between the centriole and centromere, these are called as kinetochores. ये MCQs में आता है आपको. These kinetochores they contract हो गए यानी short हो गए. ठीक है. And the spindle fibers present between the 2 opposite centrioles, which are called as polar fibers, elongate. अभी सी, ये एक टाइप हमने देखा यहाँ पर, ऐसे होते हैं. ठीक है. दूसरा जो है वो कैसे होगा, कलर चेंज करके बता दिया आपको. एक होता है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, फाइबर जो होता है वो इन दोनों में. ठीक है. तीसरा जो होता है वो एक पोल से दूसरी पोल तक जाने वाला होता है. क्लियर है. यस मैम. तो ये जो फाइबर्स है ना, ये फाइबर्स ये इलोंगेट होना शुरू हो जाते हैं. और ये जो फाइबर्स है ना ये इलोंगेट होते हैं. ये इलोंगेट होगा यानी बड़ा होगा यानी ये शॉर्ट होगा. उसके वजह से यहाँ पर पुल आता है एंड दे ब्रेक एट द सेंट्रोमियर. ये ब्रेकिंग की प्रोसेस कैसी होती है वो एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने ये एक्सप्लेन किया इस बॉक्स. ठीक है. सो द काइनेटोकोर्स विल कॉन्ट्रैक्ट एंड द पोलर फाइबर्स विल इलोंगेट. पोलर फाइबर्स यानी पोल टू पोल जाने वाले जो होते हैं उनको हम पोलर बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इस पोल से इस पोल तक जाने वाला जो फाइबर है वो इलांगेट होगा, ये शॉर्ट होगा. एंड इस वजह से ये जो क्रोमोसोम है, ये इस क्रोमोसोम में जो ये डॉटर क्रोमैटिड्स सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो डिवाइड हो जाएंगे एंड वी विल गेट द 2 डिफरेंट डॉटर क्रोमोसोम्स. समझ में आ रहा है. यस मैम. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द माइटोसिस. यहाँ पर हमारा माइटोसिस जो होता है वो खत्म होता है. नाउ यहाँ पर एक छोटा टॉपिक है, डेथ ऑफ द सेल. नाउ सी, एवरी सेल का एक लाइफ स्पैन होता है, नेचुरल लाइफ स्पैन होता है जैसे ह्यूमंस में होता है.
ठीक है ना। तो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद जो सेल है वो पूरा अपना जो भी लाइफ स्पैन है कंप्लीट करके डेड हो जाती है। दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस, ठीक है। डेथ ऑफ द सेल इज नॉर्मल, बट इन सर्टेन केसेस लाइक अगर हम कहीं गिर जाते हैं, कहीं पर लग जाता है, तो वो ट्रॉमा की वजह से सेल डेथ बोलते हैं उसको। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। सो ऐसी जो सेल डेथ है विच इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ ट्रॉमा, देन वी कॉल इट एज नेक्रोसिस। उसको हम नेक्रोसिस मतलब यानी किसी इंजुरी के वजह से अगर सेल डेथ होती है तो इट इज कॉल्ड एज नेक्रोसिस। नेचुरली आवाज आ रहा है बहुत। नेचुरली सेल डेथ होता ही रहता है, एवरीडे होता रहता है, बिकॉज सेल हैज अ स्पेसिफिक लाइफ टाइम। बट इफ इट इज unnatural, that is it is because of any kind of injury, then we call it as necrosis, ठीक है। You may think ये it is bad of the cells to die, but actually it is a natural process. In many cases it is true, it is not good for cells to die because of an injury. नॉर्मल लाइफ स्पैन खत्म करने के बाद अगर सेल डेथ होती है तो दैट इज नेचुरल। अगर वैसा नहीं होता है तो इट इज बैड एंड देन वी कॉल इट एज नेक्रोसिस। दिस इज कॉल्ड एज नेक्रोसिस। हाउएवर सम सेल्स ऑफ आवर बॉडी डाई नॉट रैंडमली, लेकिन कुछ प्रोसेसेस जो होती है ना जिसमें डेलिबरेटली सेल डेथ होती है, वहां पर इसको हम बोलते हैं कंट्रोल्ड वे में सेल डेथ होती है, और द सेल डेथ इज कैरीड आउट इन अ कंट्रोल्ड वे, ठीक है। अभी ये कहाँ कहाँ पर होता है उसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है। यानी सी हमने दो टाइप का देखा, एक तो देखा कि नेचुरल कॉज होता है, नेचुरल लाइफ स्पैन खत्म करने के बाद सेल डेथ होती है, दैट इज नेचुरल प्रोसेस। दूसरा देखा कि जहां पर इंजुरी की वजह से सेल डेथ होती है, दैट इज अननेचुरल एंड इट इज कॉल्ड एज नेक्रोसिस, ठीक है। अभी तीसरा जो होता है वो कंट्रोल्ड वे में सेल डेथ होती है, यानी यहाँ पर लाइफ स्पैन खत्म नहीं हुआ है लेकिन सेल डेथ होती है, बट इट हैपन्स इन अ कंट्रोल्ड वे। फॉर एग्जाम्पल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब होती है एट दैट टाइम हमारे अभी जो फिंगर्स दिखते हैं आपके हाथ के होंगे या पैर के होंगे, सेपरेट सेपरेट है ना। लेकिन जब एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में फीटस होता है वहां पर ये जो हमारी उंगलियां होती है ना वो एक दूसरे से एक मेम्ब्रेन से चिपकी हुई होती है, जैसे कि मैमेलियन की तरह। हाँ वेब फीट होता है, जैसे डक का वगैरह जो एम्फीबियन बर्ड्स होते हैं उनमें कैसे होते हैं ना कि जो भी फिंगर्स है वो अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन, उसी तरीके से ह्यूमंस में भी जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होता है तो उसी तरीके से होता है। नाउ ये जो सेल्स होते हैं मेम्ब्रेन के, ये जो सेल्स होते हैं ये सारे कंट्रोल्ड वे में उनकी डेथ होती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस, जो हमारे फिंगर्स है उनको एक स्पेसिफिक शेप आ जाता है, ठीक है। सो ये प्रोसेस जो है ये नेचुरल प्रोसेस है। some cells of our body die not randomly but in a certain controlled way. For example, during the embryonic development the cells between the embryonic fingers died in a process called as apoptosis। तो ये जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं एपोप्टोसिस, टू गिव अ डेफिनेट शेप टू द फिंगर्स। यानी जो मेम्ब्रेन बीच में तैयार होता है उसके जो सेल्स है उनकी डेथ होती है इन अ कंट्रोल्ड वे, ये जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं एपोप्टोसिस। दिस इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ इनसाइड द बॉडी वेर सेल्यूलर सुसाइड। यहाँ पर जो सेल्स है वो डाई होते हैं, यानी इसी को हम सेल्यूलर सुसाइड भी बोलते हैं। when they receive certain signal, यानी कुछ हार्मोनल सिग्नल्स मिलते हैं एंड देन दिस सेल्स, जो ये जो सेल्स होंगे वो अपने आप ही सुसाइड हो जाता है। वहां पर सुसाइड यानी ऑब्वियसली वहां पर जो भी लाइसोसोम होगा वो ब्रेक डाउन होगा, ये सारी चीजें जो है ना वो एंजाइम के एक्शन पर डिपेंड करती है। लेकिन ये जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं, ये स्पेसिफिक प्रोसेस जो एम्ब्रियोनिक फिंगर्स की जो बोल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज एपोप्टोसिस। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ, ठीक है। यहाँ पर जो सेल्स होते हैं दे अंडरगो सेल्यूलर सुसाइड आफ्टर सर्टेन काइंड ऑफ सिग्नल्स, कुछ सिग्नल्स मिलते हैं तभी ये प्रोसेस होता है। एपोप्टोसिस इन्वॉल्व्स सेल डेथ बट इट बेनिफिट्स द ऑर्गेनिज्म एज अ होल। यानी नेक्रोसिस जो होता है उससे नेक्रोसिस इज अ हार्मफुल प्रोसेस, बट कंट्रोल्ड सेल डेथ इज अ यूजफुल और बेनिफिशियल प्रोसेस फॉर द ऑर्गेनिज्म।
ये दोनों में से डिफरेंट है, मतलब दोनों का जो मेन डिफरेंस है वो यहाँ पर आता है. फॉर इंस्टेंस और फॉर एग्जाम्पल, लेटिंग फिंगर्स डेवलप और बाय एलिमिनेटिंग पोटेंशियल कैंसरस सेल्स. अगर ये वेब सेल्स जो होती है या ये जो बीच में जो सेल्स होती है वो वैसे ही कंटिन्यू रही, तो ये जो सेल्स होती है दे कैन अंडरगो चेंजेस इनसाइड देम एंड उसमें आगे जाके अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होके कैंसर भी हो सकता है. तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ एपोप्टोसिस जो पोटेंशियल कैंसर सेल्स होते हैं उनको बॉडी नेचुरली डेलिबरेटली एलिमिनेट कर देती है. एट द सेम टाइम जो फिंगर्स का प्रॉपर डेवलपमेंट होता है वो भी प्रोसेस होती है. इन दिस वे इट इज हेल्पिंग द ऑर्गेनिज्म और दिस इज बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनिज्म. समझ में आ रहा है? मियोसिस का जो पहला एक्सप्लेनेशन है थोड़ा सा वही देखेंगे कल के लेक्चर में. मियोसिस हम कंप्लीट करेंगे. उससे पहले जो मियोसिस का वीडियो भेजा है वो 1-2 बार तो देखो, सो दैट जो मैं कल एक्सप्लेन करूंगी वो आपको ठीक से समझ में आएगा. Now meiosis it is first coined by, यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम दिया है फार्मर. It takes place only in reproductive cells. मैंने कल भी बताया था कि माइटोसिस जो होता है वो सोमैटिक सेल्स में होता है. मियोसिस जो होता है वो रिप्रोडक्टिव सेल या गैमेट सेल्स जो फॉर्म होते हैं उस टाइम ही होता है. जर्म सेल्स में ही मियोसिस की प्रोसेस होती है. By this division the number of chromosomes is reduced to half. तो जैसे हमने माइटोसिस में देखा कि 2n अगर है पेरेंट का तो जो डॉटर सेल्स तैयार होंगे उनका भी जेनेटिक कंपोजिशन 2n ही होगा माइटोसिस में. दैट इज व्हाई इट इज इक्वेशनल डिवीजन. बट मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस में पेरेंट सेल अगर 2n है तो जो डॉटर सेल्स तैयार होती है वो n होती है, हाफ हो जाता है क्रोमोसोम का नंबर. एंड दैट इज व्हाई इट इज अ रिडक्शनल डिवीजन. नाउ एट द एंड ऑफ मियोसिस हमें 4 डॉटर सेल्स मिलती है. माइटोसिस में हमको कितनी मिलती है? 2. राइट? यस मैम. सो ये मेन डिफरेंसेस है मियोसिस एंड माइटोसिस में. सो बाय दिस डिवीजन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज रिड्यूस्ड टू हाफ. Hence, it is also called as reductional division. Reduce होता है number, that is why it is a reductional division. The cells in which meiosis takes place are termed as myocytes. तो जिन सेल्स में मियोसिस होता है उन सेल्स को, साइट का मीनिंग है साइट्स यानी सेल, मियोसाइट्स. मियोसिस जिन सेल्स में होता है उनको हम मियोसाइट्स बोलते हैं. मियोसिस प्रोड्यूसेस 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स. तो मैंने हैप्लॉइड डिप्लॉइड का कंसेप्ट आपको क्लियर किया है. जिनमें क्रोमोसोम नंबर 2n होता है उनको हम डिप्लॉइड बोलते हैं. जिनमें n होता है उनको हम हैप्लॉइड बोलते हैं. राइट? बराबर है. सो मियोसिस प्रोड्यूसेस 4 हैप्लॉइड सेल्स. मियोसिस अभी मियोसिस जैसे हमने माइटोसिस में क्या देखा कि 2 फेजेस है, कैरियोकाइनेसिस एंड उसके बाद साइटोकाइनेसिस एंड माइटोसिस खत्म हो जाएगा. ठीक है. मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस 2 सब टाइप्स में डिवाइड की गई है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. नाउ मियोसिस 1 में सेम होगा कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद साइटोकाइनेसिस. अगेन मियोसिस 2 में भी कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस. जैसे हमने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज ये 4 फेजेस कैरियोकाइनेसिस की देखी थी, उसी तरीके से मियोसिस 1 में भी वही फेजेस होगी, लेकिन हम उसको प्रोफेज 1, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 एंड साइटोकाइनेसिस इस तरीके से करेंगे. उसके बाद जो मियोसिस 2 है उसमें प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2 एंड साइटोकाइनेसिस. एंड ये दोनों फेजेस एंड होने के बाद हमको एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स मिलती है. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. दैट इज व्हाई मैंने बोला कि कल का लेक्चर शुरू होने से पहले जो मियोसिस का वीडियो है वो 2-3 बार अच्छे से देख लो, सो दैट आपको जल्दी समझ में आएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा कुछ. ठीक है? ठीक है मैम. तो आज मैं यहाँ पर खत्म करती हूँ क्योंकि कल वो भी ज्वाइन हो